Jain friends, so I hope you are doing good and you are doing practicing about English by yourself, by others. Okay, so I am considering that you are doing good yourself and you are practicing yourself. And first thing is that in English, that practice it must be in the starting yourself. In starting yourself, consider you are the second person also. You are itself first first person and you are also second person itself. So if you do practice like this, then you will become a very fluent speaker of the English, and it's good. Students, sorry, friends, we always know, we always create ourselves for better. So today we are starting for better. These are simple words. I know very well that you are thinking these words are very simple and we studied in the starting. But friends, a very long journey covered by the small steps in the life. Okay, so this is the also life, and this life started from the origin point, its origin, and this will be finished at the last. So I think you thinking that I am giving lecture. No. I am giving a very good things. Okay. So today's session will be continue on this, that, these and those. And of course this is written also there. It. So what is the meaning of it? I will tell you. Okay. So in the starting, you know very well that it used for the non-living things, and this used for living things. But friends, now according to modern language of English, that we use this and it for each other. No problem, कहीं भी use कर सकते हैं. We can use for this non-living also, living also. We can use also it, living also and non-living also. So there is no restriction, but for grammatical I told you that it is the smallest things, like very smallest, and that considered as a non-living. And this is a very common word nowadays. This person is bad, this person is good, that thing is good, that bike is good, that thing. Okay, I will tell you one thing. Actually, you can revision yourself. If tower is standing very far away, तो बोलोगे that tower is very far, और टावर यहाँ है, तो this tower is very high. और वहाँ बोलोगे this tower is very far and high, ऊंचा भी है और दूर भी है. तो दूर के लिए क्या लगाते हैं? that लगाते हैं, और पास के लिए क्या लगाते हैं? this लगाते हैं. ये दोनों सिंगुलर है. क्या है? दोनों सिंगुलर है. ध्यान रखना इस बात का. सिंगुलर. और ये दैट जो ना कंजक्शन में यूज होता है. कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है. तो बताऊंगा. जैसे मैंने बोला a person who met me yesterday, that was awesome. मतलब that लगा दे मैंने. that was awesome. a person who met me yesterday, एक person मुझे जो मिला था, who met me yesterday, that कि वो बहुत अच्छा था. okay, that was awesome. clear है? and that is awesome, no problem. These and those, these is the plural demonstrative. Okay friends, I written here use of demonstratives and representative. So these are demonstrate का मतलब होता है जो किसी को बताता है, उंगली करके बताता है. जैसे मान लो this ये बता रहा है, that दूर, और ये क्या these ये पास. बहुत सारी है, मतलब this क्या प्लुरल है. ठीक है, बहुत सारी बात चीजों का. और वन ये क्या दोस्त दूर के लिए. समझ होंगे. ये क्या पास के लिए, ये दूर के लिए. ये पास के लिए, ये फिर दूर के लिए. बट ये दोनों किस केस में? सिंगुलर केस में. और वो दोनों किस केस में? वन मोर चीजों के रूप में. मतलब प्लुरल बोल सकते हो आप. प्लुरल यू कैन सी. क्लियर है? तो आज का सेशन वेरी सिंपल होने वाला है आपको. और सिंपल मत सोचिए साहब, आपको मैं केवल तरीके बताता हूँ. मैं सिंपल सेंटेंस ही लेता हूँ आपको, बिकॉज अ वेरी हैवी सेंटेंस विल बी बोर्ड टू यू. ओके, बट वेन once you understand this technique, then you also will speak, you understand everything you can do in English. Okay, fine.
सो वी शुड स्टार्ट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब बता दे जो रिप्रेजेंट करते चीजों को, जो पास है या दूर है, ठीक है। इनके और भी यूज होते हैं, बट फिलहाल हम सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इट का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का लगाते हैं, जैसे इट रेन्स टुडे, इट मे रेन्स टुडे, मतलब इट मे रेन टुडे का मतलब है कि आज बारिश हो सकती है। या फिर बोलोगे इज इट रेन टुडे, तो क्या रेन होने वाली है। इट मतलब जो वर्षा के लिए हमेशा इट लगाते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग पक्का पक्का नेचुरल चीज भी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, ये दोनों क्या है, ये पास के लिए लेकिन सिंगुलर में, ये पास दूर के लिए लेकिन सिंगुलर में, वो क्या है पास के लिए लेकिन प्लूरल में, वो दूर के लिए प्लूरल में। क्लियर है आपको बात। मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर प्लूरल, प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव्स वर्ड्स, ओके, जो रिप्रेजेंट करते हैं कौन की चीज कहाँ बता रहा है। जैसे कि मान लो आप कहीं खड़े हो, बुक सेलर पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग एज, कंसिडर दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ book seller, book depot, and there are so many books, but you are considering you and your friends are searching books for you, then better and better, this book is so far better than this, this book is so far better than this। इसका मतलब ये हुआ कि एक बुक है ये वाली, ये बहुत ज्यादा बेटर है। so far का मतलब बहुत 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 दूर, so far, this ये दोनों पास पास लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया। so far का मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब दूर है, बहुत अच्छी बुक है। दिस बुक इज सो फार बेटर, ये बुक है, एक बुक ये, दिस बुक सो फार बेटर देन दिस। और ध्यान रखना देन जो लगाया मैंने यहाँ पे, ये देन कंपेयर वाला है। अगर ये वाला देन लिखोगे आप लोग THEN, तो ये तब के लिए देन, देन तब, उस समय ये हुआ था, तब ये हुआ था, लेकिन ये देन कंपेरिजन वाला, ए वाला ध्यान रखना, कंपेरिजन वाला। सो दिस बुक इज सो फार बेटर देन दिस। और यहाँ पे दिस दो क्या दैट लगाएंगे, दूर रखी, दूर रखी जाए, जिसका मतलब काउंटर यहाँ पे और तुम आगे की बात कर रहे हो कि वो दैट बुक इज वेरी फार, है ना, दैट बुक इज सो फार बेटर देन दैट, देन दिस एंड दैट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दूर की बात चीजों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट लगाओगे। और दिस बुक्स आर सो फार बेटर देन दिस, अगर ये बहुत सारी, मतलब बहुत सारी बुक्स जो है, ये बहुत सारी जो बुक्स हैं ये फार बेटर है देन दिस, इन सभी से ये अच्छी हैं, इसका मतलब ये। दोस्त अगर दूर रखिए फिर से, दोज बुक्स सो फार बेटर देन दोज, मतलब समझ गए होंगे आप बात। फिर दूसरा सेंटेंस है दिस बाइक रन्स फास्ट, ये रन्स क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, बाइक एक ही है तो रन्स करेगी ना, वो अच्छी भागती है, मतलब दौड़ती है। दिस बाइक रन्स सो फास्ट, दैट अगर दूर की है, अगर पास कर दो दिस, दैट बाइक रन्स सो फास्ट। और अगर बहुत सारी है दिस बाइक्स आर रन सो फास्ट, आर लगाओगे, ध्यान रखना, दी से तो आर लगाओगे, क्योंकि ये क्या वर्ड आपका प्लूरल है। दिस बाइक्स रन्स, दिस बाइक्स आर रन सो फास्ट, दूर है, दोज बाइक्स रन सो फास्ट। क्लियर है आपको बात ये, ठीक है। आप यहाँ पे बाइक की, मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, जब बुक का एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चीज कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ लिखा भी है, चीज का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी देयर, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी देयर। दिस सेल फोन, आजकल हम सेल फोन को मतलब सेल फोन नहीं कहते, वो फोन को फोन नहीं कहते, सेल फोन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल पड़ा होता है, तो इसलिए सेल और प्लस फोन, सेल फोन, ओके। दिस सेल फोन इज नाइस, दिस सेल फोन इज नाइस, इसका मतलब ये हुआ कि दिस सेल फोन इज नाइस, पास में है तो दूर है, तो दैट सेल फोन इज नाइस, दूर है। और अगर बहुत सारे सेल फोन्स है तो दिस सेल फोन्स आर नाइस, और बहुत दूर रखे हैं लेकिन नाइस है, दो सेल फोन्स आर नाइस। दिस हाउस इज लुकिंग नाइस, अगर पास है कोई हाउस तो बता दो, देखो दिस हाउस इज वेरी लुकिंग नाइस। और दूर बन रहा है बहुत दूर से, जैसे हम जाते हैं कि बाइक से जाते घूमने जाते हैं, तो हमें कोई घर दिखता तो हम कहते हैं दिस नहीं बोलोगे, दैट बोलोगे, क्योंकि दूर है वो। पास है तो फिर दिस लगा दोगे। दिस हाउस इज लुकिंग नाइस, और यहाँ दोज हाउस आर लुकिंग नाइस, क्योंकि बहुत सारे हैं पास में, दिस है, और दोज हाउस आर लुकिंग नाइस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस मार्कर इज बेस्ट, दैट मार्कर इज बेस्ट, दिस मार्कर्स आर बेस्ट, दोज मार्कर्स आर बेस्ट। ओनली कंडीशन चेक करो, आप कंडीशन चेक करो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस, नोट अ क्लियर। जैसे हिंदी में कई सारी बातें बोलते हो, आज बाजार जाना है, आज बाजार को जाना है, मुझे बाजार जाना है, बाजार को जाना कुछ खरीद कर लाना है,
मतलब एक ही बात को आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, सिमिलरली इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप एक्चुअल सेंटेंस बोलने की कोशिश मत क्या कीजिए जब भी इंग्लिश बोल रहे हो, एक्चुअल बोलोगे तो फंस जाओगे, ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। दिस मार्कर इज बेस्ट, दैट मार्कर इज बेस्ट, दिस मार्कर आर बेस्ट, दोज मार्कर्स आर बेस्ट। दिस चीज, अब मैंने यहाँ पे कभी मैं बाइक की बात, बुक की बात कर रहा हूँ, कभी बाइक की बात कर रहा हूँ, कभी सेलफोन की बात कर रहा हूँ, कभी हाउस की बात कर रहा हूँ, कभी मार्कर की बात कर रहा हूँ। तो आप एक काम करो ना, दुनिया में कितनी चीजें हैं, अगर वो पास है तो आप दिस लगाओ, सोचो कि कितनी सारी बातें मैं जी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए आज, ठीक है, ओके ना। तो आप जानते हो इन बातों को, दिस मार्कर इज बेस्ट और दिस चीज इज फंटास्टिक, मतलब जो भी है फंटास्टिक बोल सकते हो, बेस्ट बोल सकते हो, गुड बोल सकते हो। जैसे हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हैं बताने के लिए, ठीक है, वैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंग्लिश की यही तो ब्यूटीफुलनेस है, एक वर्ड को अच्छे से बता सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, क्यूटनेस, हैंडसम वगैरह ना। वैसे हैंडसम यूज्ड फॉर बॉय, मेल, and beautiful used for girls, cute also for girls, and cutie there are so many words, okay, you can understand, clear है। so that चीज, कुछ भी चीज है जो फंटास्टिक है, जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब सबसे मस्त, सबसे बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि पहला लेवल थोड़ा कम था, लेवल हाई हो गया उस चीज का, ठीक है, तो उसका लेवल वेरी हाई हो गया। सिमिलरली योर इंग्लिश इज नाउडेज लो, बट in upcoming time your English is going to be far better than now, okay, your English will be far better than now, clear है, okay, so you understand very well. Now I am telling you that if a tower is standing very far, so tower standing is very far, अगर कौवे उड़ रहे हैं मतलब crows are flying in the sky, those ऐसे बोलोगे, those crows flying in the sky, and train जा रही है, that train is going very fast on the station, and if a person is standing on the tower, a person is standing on the power, that person is standing on the tower, okay। अगर तुम कल किसी पर्सन से मिले थे तो आप क्या बताओगे उसके बारे में, a person met me yesterday, a person who met me yesterday, that was very awesome, that was good, that was outstanding। आपको कुछ की बात अच्छी लगी है तो आप बोल सकते हो कि a person who met me yesterday, he was outstanding, that he was outstanding, he मत लगाओ। और अगर तुम कुछ कॉमन बातें कर रहे हो, जैसे मान लो आजकल हम क्लास में बैठ के बातें करते रहते हैं, बातें करते हैं तो हम बोलते हैं अगर ही सी, तो आप जानते हो कि ही सी अगर हम बोलेंगे तो एकदम समझ जाएगी पार्टी, क्योंकि एक पार्टी उनमें से गर्ल्स होती है और एक पार्टी बॉयज होती है। तो अगर तुम बोल रहे हो हम बातें कर रहे हैं तो उसने मतलब सी बोलोगे तब फंस जाओगे आप, क्योंकि सी ने बोला, चाहे किसी भी सी ने बोला है तब तो आपकी आनी पक्का, ठीक है, और ही बोला तब भी आनी है। चलो ही में तो केस है कि बच जाओगे, क्योंकि वो कुछ केस अलग है, लेकिन सी वाला केस थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। चलो मजाक की बात है, अदरवाइज मत लेना, ओके। तो तुम सी और ही को यूज अगर नहीं करना चाह रहे हो, कॉमन बात चल रही है आपकी 2% की, तो आप दैट यूज कर सकते हो। दैट पर्सन वाज आउटस्टैंडिंग, दैट पर्सन वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट पर्सन वाज ग्रेट, दैट पर्सन इज गुड, दैट पर्सन इज डूइंग दैट वर्क, दैट पर्सन इज डूइंग दिस वर्क, दैट पर्सन इज ईटिंग फूड, दैट पर्सन इज गोइंग टू मार्केट, दैट पर्सन इज, दैट मीन्स नोबडी विल अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारे पास में कोई है वो समझ नहीं पाएगा कि ये किसकी बात कर रही है, तुम बात भी कर लोगे अपनी, ठीक है। 2% और मेल टू मेल हो सकता है, फीमेल। देखो भावना मत बो, मैं केवल तुम्हें बता रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, भावना में मत बहो, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, अदरवाइज you never silent, okay, yeah, I am telling you also. So if you are understanding that, you are good. If you are not understanding that, it's good, because you are not practicing, you are not listening, you are not approaching, you are not working on your English, and you should work on your English, because I know how to speak English, but I am also making, this is the 5 day, okay, how to 21. If you not accepted your this challenge, so this is not good. So how can you accept the challenge of life?
That means this challenge also part of life, so you have to take. Have to, has to, must have to and had to, इन पर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा और आपकी इंग्लिश बहुत मस्त हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर पास्ट की बात कर रहे हो, जैसे मान लो एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम कहीं गए थे बाजार में और कोई पर्सन आपसे मिला है, वो टकरा गया आपसे, ठीक है, तो उसने क्या करा कि तुम्हारी हेल्प करी है या तुम्हारी पिटाई करी है, जो भी करी है, तो आप बोल सकते हो अ पर्सन हु मेट मी मार्केट यस्टरडे एंड हु हेल्प्ड मी। हेल्प लगाओगे, ध्यान रखना, हेल्प्ड मी, क्यों? क्योंकि उन्हें हेल्प करी, पास्ट में ईडी लगा दोगे आप, ठीक है। तो सेंटेंस जो टेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको बात करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर तुम बोलोगे अ पर्सन हु मेट मी यस्टरडे एंड ही विल हेल्प मी, नो, यस्टरडे अगर मिला था पर्सन हेल्प यस्टरडे करेगा आपकी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। ये मत सोचना कि वो पर्सन फिर बाद में मिलेगा, नो। नाउ डेज पर्सन हेल्प ऑन द इंस्टेंटली इफ दे वांट, अदरवाइज दे डोंट, okay, so for today's only this very simple session, I think you understand what I told you, and thank you very much for giving me this love and affection towards my videos and to me also, okay. So I would like to tell you only one thing, that please continue to this channel and subscribe, okay, subscribe and like and share also. It's must, because I'm telling, so it's must. Thank you very much. You have a great day.